Greetings everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your host, friend and guide Harshvardhan Tripathi, and as promised, I am back with you all for another 100 topics that you need to prepare from current affairs. Well, before that, I have an exciting announcement to make. I have an exciting piece of information also to share with you that Law Prep Tutorial is coming up with a special session, with a special program of 5 days where we are taking you through the important areas that are required to be understood before you sit down for CLAT 2025, and that is CLAT Samadhan. From CLAT Strain to CLAT Gain. Well, you can exactly go on the link which is given in the description and you can register in this particular special program for a meager sum, for a meager cost. You can put your name, contact number, email address, and you have to also give a declaration as to whether you are a student of Law Prep Tutorial or you are not a student of the Law Prep Tutorial. And once you will come to this particular segment, you will find that it's a 5 episode series which is basically focusing on legal traps, CR with Bollywood style, the QT cure, and magic with GK. And all of this are going to be taken by expert faculties. Well, for that matter, in legal episode 1, you will find me, the legal traps, and where I will be telling you as to what are the traps that are there in your CLAT paper. Followed by this, the QT cure will be taken by our expert faculty on quantitative aptitude, that is Ritesh sir, and he will be telling you the tricks, the tips, how you can solve QT within 15 to 20 minutes. So it's a must attend class. मतलब QT तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट रहता है एक बच्चे का क्लैट एग्जामिनेशन में, तो आप इसको बिल्कुल ही ज्वाइन करिएगा. सेकेंड एपिसोड पे रितेश सर मिलने वाले हैं एंड थर्ड एपिसोड में आपको हमारे एक्सपर्ट मेंटोर मुकुल सर मिलेंगे जो क्रिटिकल रीजनिंग पे आपको बताएंगे कि क्रिटिकल रीजनिंग पे किस तरीके से गहन विचार करना चाहिए. I mean, using Bollywood to indicate the short tricks for critical reasoning. Well, that is what Mukul sir is going to take in the third episode. So remember the date, 29th August. And in the fourth episode, you will find our expert faculty for current affairs, Mohit sir. And he will tell you that how you can approach this particular section of GK without even knowing anything about that particular section. So that is the idea, that is the intent. And at last, in the fifth episode, you will have you will get to witness or get to interact with All India Rank 2 of CLAT 2020, who is Adya Singh, and she will ultimately be sharing the lifestyle at National University. वेल क्लैट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो हर बच्चे को पता चल ही जाता है. यूट्यूब पे इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे इंटरव्यूज़ हैं. हमारे खुद के चैनल पे ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जहाँ पे 50,000 60,000 व्यूज़ क्रॉस कर चुका है. ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ डिस्कशन है, ऑल इंडिया रैंक 5 के साथ डिस्कशन है, 7 के साथ डिस्कशन है. लेकिन NLU जाने के बाद लाइफ कैसी होती है, ये क्लैट एस्पिरेंट को अगर पता चल जाए कि लाइफ एक्साइटिंग होती है, लाइफ बोरिंग होती है, क्या पुल्स एंड प्रेशर रहते हैं, क्या पंचेस होते हैं, तो मे बी हमारा जो एंथुजियाज्म है क्लैट एग्जामिनेशन के लिए वो बढ़ जाए. तो आद्या सिंह जी आपको इसके बारे में बताएंगी काफ़ी. तो आप बहुत इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है, आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. अगर आप LPT के स्टूडेंट हैं तो वैसे भी नहीं मिस करेंगे. अगर आप नॉन LPTN हैं तो ये सेशन आप ही के लिए है और आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो आप इसको रजिस्टर ज़रूर करिएगा. डेट्स मैं फिर से आपको बता देता हूँ. 27th अगस्त लीगल, 28th अगस्त QT, 29th अगस्त CR, 30th अगस्त GK and 31st August में Ultimate Lifestyle at National University. Well, this is the entire 5 episode show of the CLAT Samvidhan series that we have started. And it is interesting that Law Prep Tutorial हर बार कुछ ना कुछ नया और नायाब करने की कोशिश करता है. अभी हमारा लॉ समिट कंप्लीट हुआ है जयपुर में, जहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडियन बस्सी को इनवाइट किया था फॉर द एंथुजियाज्म ऑफ स्टूडेंट्स, और यूनियन मिनिस्टर भी वहाँ पे मौजूद थे. फिर आपने क्लैट पंचायत जैसा सीरीज़ देखा जो अभी ऑन गोइंग है, जिसमें जीके के 7 एपिसोड्स हुए, जिसमें ऑल द मोर अराउंड 400 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस हुए. फॉलोड बाय दैट CR का क्लैट पंचायत हुआ. अब अगला जो क्लैट पंचायत है वो लीगल के ऊपर आने वाला है. तो ये सारी चीज़ें जो LPT के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसका फ़ायदा उठा ही रहे हैं. जो नॉन LPTNs उनको समझ में आएगा कि लॉ प्रेप ट्यूटोरियल इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर CLAT examination. And with that thought, let me come exactly back to this particular matter that I had to discuss with you. In the next 10 minutes, in a very short span of time, I'm going to take you through another 100 topics
दैट यू शुड प्रिपेयर। मैं आशा करता हूँ कि पहले के जो 100 टॉपिक्स हैं वो आपके कंप्लीट हो गए होंगे, उसकी पढ़ाई आपने प्रॉपरली कर ली होगी, उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये टॉपिक्स स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स के सोर्सेज जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, एआईआर और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जैसे सोर्सेज से डेराइव टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पे वो ऐसे नॉन कन्वेंशनल टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपको दिखाई देगा। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द न्यू पब्लिक एग्जामिनेशन बिल, जहाँ पे अनफेयर मीन्स और चीटिंग की गई। जैसा कि आपको पता है कि जीके में बिल्स लगातार आते रहते हैं, तो ये टॉपिक अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाइना ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस में प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये एक कारण ये भी है कि क्वाड जैसी ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, क्वाड जैसा एक संगठन है, एक एसोसिएशन है 4 देशों का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बदलते डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते चाइना के साथ भी रिश्ते में खिंचाव तनाव होता रहता है। और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस है यांग हेंगजुन का, हु वाज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, एंड द सस्पेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सस्पेंडेड बाय चाइनीज गवर्नमेंट। तो ये चाइना ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, दैट इज वेयर यू कैन फाइंड इट। 103rd टॉपिक पे आप देखिए तो उत्तराखंड ने अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड का नया वर्जन जो है, का जो लेटेस्ट वर्जन है वो अनाउंस किया। तो यूसीसी का जो आपको दिखाई देगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड है, ये पॉलिटी से भी रिलेटेड है, तो इसके भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। 104th में आप देखेंगे कि यूसीसी को किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में आर्टिकल 44 को लेके क्या इसको मैंडेटरी करना चाहिए कि डिस्क्रिशनरी छोड़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी हिस्ट्री है। तो ये दोनों टॉपिक्स अपने आप में साथ में प्रिपेयर करे जाने चाहिए। 105th टॉपिक पे आइए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राइट। Ministry of Information and Broadcasting had tried to make theaters more accessible for persons with visual and hearing disabilities. How they are doing it, that is what you are going to study. Story of SZA, Queen of R&B, and this is where it is coming from the 66th Annual Grammy Awards का scenario। और ऐसे हट के टॉपिक्स क्लाड कंसोर्शियम को पसंद है, तो आप ज़रा देखिएगा कि ये ग्रैमी अवार्ड्स में ये SZA के ऊपर, ये जो सिंगर है फेमस, इनके ऊपर क्या बात हुई है। नजूल लैंड, अगेन ये एक मैटर है जो कि न्यूज़ में लगातार था। हालांकि इसमें जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आने के जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए नजूल लैंड क्या होता है, क्योंकि आपको पता है जो वक्फ बिल है अभी जो आपने देखा, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। हालांकि विड्रॉ हो जाने के बाद क्लैड के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं, बट फिर भी क्या पता एक पैसेज आ जाए, क्या पता लीगल में आ जाए। तो आप इसको देखिएगा, ये हल्द्वानी उत्तराखंड की वायलेंस से रिलेटेड है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे रीजनल फोरम से 4th एशियान डिजिटल मिनिस्टर की मीटिंग हुई है सिंगापुर में, जहां पे एशियान ने पहली बार एआई रेगुलेशंस को बिजनेस फ्रेंडली करने की बात करी है। और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन, जो कि एक ह्यूमन सेंट्रिक या राइट्स सेंट्रिक अप्रोच लेता है, जहां पे बिजनेस कंपनीज के इंटरेस्ट को थोड़ा पीछे रखा जाता है, वहीं एशियान ने बिजनेस फ्रेंडली एआई रेगुलेशंस बनाया है। तो अगेन ये आपको एशियान वर्सेस यूरोपियन यूनियन में डिस्प्यूट दिखाई देगा, जो कि अभी यूरोपियन इलेक्शंस के बाद और ज़्यादा तेज़ी से समझ में आ रहा है। 109 टॉपिक की बात करिए तो भारत रत्न के पीछे क्या मैसेज है, हर एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी का एनालिसिस, उसका हिस्ट्री, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल, उसका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। MS स्वामीनाथन के C2+50% फॉर्मूला पे क्लैट में क्वेश्चन आया हुआ है। ओबीसी और कास्ट सेंसस से रिलेटेड कर्पूरी ठाकुर जी हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है सब कैटेगराइजेशन पे। तो जातिवाद और जात की जनगणना, ये सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, तो आप इनकी एनालिसिस को ढंग से करिएगा। LPG रिफॉर्म से रिलेटेड हमारे PV नरसिम्हा राव, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और आपको पता होगा कि नरसिम्हा राव के अंतर्गत ही हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है वो बनाई गई। तो फॉरेन पॉलिसी में भी काफ़ी योगदान प्ले किया इन्होंने, राइट। तो ये वाली चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और इसका पूरा कंप्लीट बैकग्राउंड आपको पढ़ा होना चाहिए। 111 टॉपिक पे आइए, तो 111 टॉपिक की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगी। फर्दर यू विल फाइंड दैट पाकिस्तान के इलेक्शन हुए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर्स को पिकअप करने का क्या नया तरीका है आर्टिकल 324 में, ये बहुत फेमस जजमेंट है। अनूप चंद्र पांडे जी जब रिटायर हो रहे थे तो 2 हमें इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना था, उसके ऊपर पूरा डिक्लेरेशन या आर्टिकल आया। अब उसके बाद आपको दिखाई देगा कि पीटर वांट्स टू बैन असम्स
टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, द बफेलो एंड द बुलबुल फाइटिंग, राइट। और ये मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने, हालांकि अगेन मैं वापस से दोहराऊंगा कि ये मामला सबजुडिस है और सबजुडिस मामलों के आने के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैज प्रोमिस्ड that Prime Minister of Cambodia to return the Khmer artifacts. Now Khmer artifacts which are related to 1970 UNESCO Convention, इसके पीछे आपको वादा दिखाई देगा कि जर्मनी ने नामीबिया को वादा किया है, क्या यूके भी भारत को वादा कर रहा है कि वो सारे आर्टिफैक्ट्स वापस करेगा? वेल, इसके ऊपर आप एक जनरल डिस्कशन कर सकते हैं। ये टॉपिक आने के उतने चांसेस नहीं हैं, लेकिन यूनेस्को कन्वेंशन यूनेस्को से रिलेटेड है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड इन सब से रिलेटेड है, तो एक आध सवाल तो आपको दिख सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। वैसे तो ये मॉक्स में खासा फेवरेट टॉपिक बना रहता है, क्लैट में अभी तक नहीं आया है, लेकिन क्योंकि इंडाइसेस और रैंक्स जो हैं, इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स क्लैट में आती ही आती हैं, तो आप भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर स्नो लेपर्ड के ऊपर मामला आ रहा है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड है। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट हुआ है इंडिया में, जहाँ पे 718 स्नो लेपर्ड्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लद्दाख में पाए गए हैं। ये जो सर्वे है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद 2 NGOs के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन करवाने की बात है। एंड अगेन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ जो 7 हमारी कैट्स हैं, वाइल्ड कैट्स हैं, उनको कंजर्व करने के लिए जो चल रहा है। फिर आपने अभी देखा होगा कि कूनो नेशनल पार्क के अलावा एक गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी यूज़ किया जा रहा है, बात चल रही है कि उसको भी क्या वहाँ पे चीता रिलोकेट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 116 टॉपिक पे आइए। देखिए, इस टॉपिक एक्सप्लेनेशन को मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न दैट टॉपिक में किस गहराई तक हमें जाना है ये भी हमें पता होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कोसा एक्ट एक अनाउंस की है, जिसमें आप देखेंगे कि बड़े जायंट्स को, जो एडटेक जायंट्स हैं, 7 ऑफ द फेमस जायंट्स वर समन्ड बिफोर द कांग्रेस। और आपने बड़ा फेमस वीडियो भी देखा होगा कि जो मार्क जकरबर्ग हैं वो अपॉलॉजी दे रहे हैं एक 16 साल के लड़की के पेरेंट्स को कि उसकी वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, राइट, उस लड़की को हैरासमेंट फेस करना पड़ा, ऑनलाइन बुलिंग फेस करनी पड़ी। और कांग्रेस पूछ रही है, यूएस कांग्रेस पूछ रही है कि भाई तूने क्या किया वहाँ पे, तो उसके ऊपर बात है। नैनो डैप, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, पूसा बायोडिकम्पोजर नाम का एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो नैनो डैप हमारा लिक्विफाइड फर्टिलाइजर है जो इफ्को ने बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको डिस्कस करना चाहिए। 118 डिस्कस क्या करना चाहिए, इसके ऊपर नोट्स बना लेने चाहिए। इसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, एक स्पेशल हमारा पॉलिटी से निकल के टॉपिक आता है, राइट, कि हिस्ट्री क्या है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की, क्या इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। क्योंकि ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं। और वहाँ पे अगर आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट वाले स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो जाति के आधार पे उप मुख्यमंत्रियों का निर्वाचन या चयन किया जाता है, तो ये वाले मामले भी न्यूज़ में बने रहते हैं। वेल, हमको इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। 119 की बात करें तो यूएस और चाइना के बीच में हाई लेवल टॉक्स हो रहे थे, और इनके बीच में जो टॉक्स हो रहे हैं वो थाईलैंड में हो रहे हैं। देखो, इस साल मैं तुमको बता दूं कि मैंने जो आम तौर पे नोटिस करा है, हालांकि एशियान की मीटिंग तो हर साल होती है, 37, 38, 39, 40, 41 के आगे भी जा चुके हैं। अब इंडिया एशियान समिट भी लगभग एनुअल समिट के रूप में होती है, लेकिन इस बार थाईलैंड और कंबोडिया नाम के 2 देश काफ़ी विचित्र पोजीशन पे हमारे सामने आ रहे हैं, जहाँ पे थाईलैंड में कुछ इस तरह का पॉलिटिकल प्ले चल रहा है कि हमें देखने को मिल रहा है कि यार थाईलैंड जो है वो चाइना की तरफ अपना रुख थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। अब थाईलैंड जैसा देश अगर चाइना की तरफ अपना रुख बढ़ाते हुए नजर आएगा तो वहाँ पे कैच क्या है इंडिया के लिए कि बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है और हमारी जो बिम्स्टेक की मीटिंग है उसमें पुल्स एंड प्रेशर्स अजीब तरह के देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना है कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जैसा हमारा एक लंबे तौर पे कोऑपरेशन है, मेकोंग और गंगा कोऑपरेशन का, जिसमें कई सारे लाओस, कंबोडिया जैसे देश भी शामिल हैं। फिर आपने देखा कि यार एशियान देशों में हमने वियतनाम को INS किरपान नाम का शिप दिया और फिलीपींस को ब्रह्मोस नाम की मिसाइल दी, और $375 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है हमारा फिलीपींस के साथ। और साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन अब 10 डैश लाइन होते हुए दिखाई दे रही है। और आपको बहुत सारा एरिया, स्प्रैटली आइलैंड्स का डिस्प्यूट, फिर स्टेट ऑफ मलक्का का डिस्प्यूट, फिर 2017 का हमारा डोकलाम क्राइसिस, ये सब कुछ इंडिया और चाइना के बीच में जो साउथ एशिया में जो पावर प्ले चल रहा है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके ऊपर चीज़ें देखने को मिली हैं। तो आपको इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ना चाहिए, काफ़ी सिग्निफिकेंट टॉपिक हो जाता है ये।
फिर मेघालय ने अपना एक नया एंथम अनाउंस किया जो कि न्यूज़ में था, छोटा बहुत टॉपिक है जहाँ पे मेघालय डे के ऊपर बात है, 52nd स्टेटहुड डे, राइट। एंड जैंतिया ट्राइब इज़ नॉट हैप्पी, तो अगेन आप उसको पढ़ सकते हैं। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची ने नीट मीट के साथ पार्टनरशिप करके लैब ग्रोन मीट ग्रो करने की बात करी है, अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। 122 की बात करें तो मुझे ये टॉपिक खासा इंपॉर्टेंट लगता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्लैट 2025। वाई? बिकॉज इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक की बात कर लो, चाहे आप एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लो, ये दोनों ऐसे संगठन हैं जिसके तहत बार बार न्यूज़ में आता रहता है। और पूरी की हाउदी की क्राइसिस, जॉर्डन का मामला, सीरिया का मामला, ये सारा कुछ इन्हीं दोनों की हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और टावर 22 अटैक के नाम से इस अटैक को जाना जा रहा है न्यूज़ में, आप इसको भी पढ़ाई करेंगे। फिर आप 123rd टॉपिक पे आइए, तो AISHE, राइट, 2021 के डेटा हमारे सामने आ गए हैं। इसको आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में क्या कर रहे हैं। हालांकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमारे न्यूज़ में, पेपर में आ चुकी है, ठीक है। ये PYQ है हमारा। तो अगेन एजुकेशन और सर्वे इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, 124 जैसा क्वेश्चन जो है, ये 2019 से पहले क्लैट में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस, हट के टॉपिक्स देखे जाते थे। मोनालिसा की पेंटिंग पे सूप फेंका गया, और इसी तरीके से जस्ट स्टॉप ऑयल एक तरह का प्रोटेस्ट था, जस्ट स्टॉप ऑयल मूवमेंट था, जिसके ऊपर एक पेंटिंग के ऊपर टोमेटो सूप फेंका गया था। तो ये PYQ में आ चुके हैं इस तरह की चीज़ें। हालांकि बात सारी की सारी क्लाइमेट चेंज और इन्हीं सबसे रिलेटेड है, तो जस्ट स्टॉप ऑयल मूवमेंट हमारा क्योंकि आ चुका है, तो मोनालिसा की पेंटिंग पे सूप फेंका गया विद अ कोट, रिपोस्ते एलिमेंटायर। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज द हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ सच प्रोटेस्ट? इट इज़ अ वेरी हटके टॉपिक बट वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइट को ऐसी सारी चीज़ें काफ़ी पसंद है। डेथ बाय नाइट्रोजन, हमारे यहाँ पे डेथ पेनाल्टी का केस है, और वहीं पे अलाबामा में जो पहली बार एक नाइट्रोजन गैस के तहत किसी एक व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन किया गया, डेथ सजा दी गई। पेनलेस डेथ देने की बात थी कि आदमी 30 सेकंड के अंदर मर जाएगा, लेकिन उस प्रोसिक्यूशन के दौरान देखा गया कि 2.5 मिनट तक आदमी बिलखता रहा, तो ये पेनलेस डेथ तो नहीं हो सकती। तो उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। वेल, दैट इज समथिंग दैट यू शुड प्रिपेयर। अभी तक हमने 25 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, लेकिन जिस डेप्थ में हम लेके आपको जा रहे हैं, वो डेप्थ आपको काफ़ी हेल्प करेगी जस्ट टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड। इनफैक्ट अगर आपने सिर्फ ये हेडिंग्स ही पढ़ ली काफ़ी तौर पे, तो आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मार्क करने की पोजीशन पे रहेंगे। इस तरह से इंफॉर्मेशन हम आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर देखिए, ये लीगल से इंसेस्टुअस सपिंदा मैरिजेस, जहाँ पे बात होती है सपिंदा रिलेशनशिप्स की हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, वो टॉपिक जीके के लिए भी ज़रूरी है, लीगल के लिए भी ज़रूरी है। 26 जनवरी की क्या हिस्ट्री है फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ये तो आप आमतौर पे देखेंगे ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, कोविंद पैनल का वन नेशन वन इलेक्शन, एंड दिस इज अ हाईली लाइकली, I would say this is a highly probable topic which can appear in your CLAT. हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन के रूप में ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि जो कोविंद पैनल है, इसने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। क्योंकि मैं जिस तरह से पेपर का रुख समझ पा रहा हूँ, 18th लोकसभा के ऊपर हमें इलेक्शंस के ऊपर हमें पैसेज मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। हालांकि ना आए तो वो हमारी किस्मत ख़राब, बट वन नेशन वन इलेक्शन इससे रिलेटेड है, सो वी कैन कंटिन्यू विद दिस, राइट। फिर देखिए, March 14 इज टू बी सेलिब्रेटेड एज पाई डे। अगेन आई एम सेइंग दैट ये सारे टॉपिक्स क्लैट को पसंद होते हैं, हट के टॉपिक्स होते हैं कि पाई डे क्या है। 14th March, राइट, विच इज सेलिब्रेटेड एज पाई डे, इज नाउ नोन एज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इन द वो स्टार्टेड बाय लैरी शॉ इन 1988। तो आप इसकी हिस्ट्री को रीड कर सकते हैं। दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया है, डेविन, विच वॉज लॉन्च्ड बाय US अप्लाइड AI लैब कॉग्निशन। तो ये भी हट के टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। लुडविग गोरांसन बैग्स बेस्ट ओरिजिनल स्कोर अवार्ड एट 96th एकेडमी अवार्ड्स। ऐसे टॉपिक्स एलेट और स्लैट दोनों में आते हैं। अब आपको पता है कि स्लैट जैसा पेपर भी अपना दिसंबर में हो रहा है, तो वहाँ की प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर देनी चाहिए हमें, राइट। तो 131 इज फ्रॉम देयर। इंडिया का पहला इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिगिंस कोर लोडिंग एट कालापक्कम। तो ये इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर और इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी एज अ क्लीन एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी एज अ क्लीन एनर्जी
और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं. अगेन यू विल प्रिपेयर इट एट एक्सटेंसिवली एट लेंथ, राइट. 133 पे आइए. साउथ कोरियन कंपनी अनाउंसेस सोशल रोबोट हॉडोल फॉर सीनियर सिटीजन्स टू बीट लोनलीनेस. नाउ सोशल रोबोट हॉडोल ये क्या है, नाम याद रहेगा तो मार्क कर लेंगे, बाकी उसको डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इंडिया ऑन 11th March सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि 5 यूजिंग MIRV टेक्नोलॉजी. हाईली प्रोबेबल टॉपिक, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. अग्नि 5 हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, हाईली प्रोबेबल टॉपिक है. मिशन दिव्यास्त्र है क्योंकि इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस हमें प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को भी मिले हैं. 135 की बात करिए तो 135 टॉपिक में आपको दिखाई देगा कि भाई पैलेस्टीन में जब हमें गाज़ा में एड पहुंचानी है, अमेरिका ने कहा हमें एड पहुंचानी है, तो उसके लिए वो एक फ्लोटिंग डॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको JLOTS यानी जॉइंट लॉजिस्टिक्स ओवर द शोर का नाम दिया गया. और ये हमारे बेली ब्रिज से रिलेटेड है जो कि इंडियन आर्मी ने भी वायानाद में कंस्ट्रक्ट किया था, राइट. तो दोनों ही चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और भाई टॉपिक्स की ब्यूटी ही यही है कि ये काफ़ी सारी टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है. 136 के ऊपर आइए तो 136 में आपको दिखाई देगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट SSLNG वीजापुर कॉम्प्लेक्स में इनॉग्रेट किया. फिर एंजेला चाओ, ये बिलियनियर CEO हैं जिनकी टेस्ला गाड़ी ने खुद को रिवर्स कर लिया, तो कार सेफ्टी का इशू. डोलमा आंटी मोमोज और इनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का स्टोरी अंडर ट्रेडमार्क्स एक्ट. सीमा, ये गूगल डीप माइंड का न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या है. इंडिया ने अपने 4 गगनयान के पायलट्स का नाम भी रिवील किया, क्या इनका स्कोप है, ये आपको एक्सियोम भी इससे रिलेटेड है, ये भी आपको पढ़ना है. इंडिया ने एटमॉस्फेरिक टेस्ट बेड रिसर्च बनाया सीहोर जिले में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने पैसा लगाया, तो ये टॉपिक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. फर्दर आप आइए तो पाई द फर्स्ट मोस्ट इमोशनली इंटेलिजेंट AI इन्फ्लेक्शन AI ने बिल्ड किया, और एंथ्रोपिक का क्लॉड 3, ये भी एक टॉपिक है. एनवीडिया ने अपना नया ब्लैकवेल B200 नाम की चिप अनाउंस कर दी है जो H100 हॉपर से भी 30 टाइम्स फास्ट है, और इनका ग्रूट प्रोजेक्ट भी आपको पढ़ना चाहिए कि प्रोजेक्ट ग्रूट है क्या. 144 पे आइए तो सेबी ने हमारे फंड हाउसेस को बोला है कि आपको ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि आप 7 बिलियन सीलिंग लिमिट को पार कर रहे हैं. फर्दर आप आगे बढ़िए तो सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट चेक यूनिट पे फैक्ट चेक यूनिट पे क्या लगाया है, ब्लॉक लगाया है, तो ये लीगल के लिए भी ज़रूरी है. 145 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जिनका अपॉइंटमेंट हुआ, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, उनके अपॉइंटमेंट को रोकने से मना कर दिया. तो ये टॉपिक अगेन ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड ही था जहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात करी. फिर इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, द राइज ऑफ द बिलियनियर राज, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की. अगेन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेट करेंगे इस टॉपिक को, तो आप कर लेंगे. फिर ए वतन मेरे वतन नाम की एक मूवी आई जो उषा मेहता की बायोग्राफी है और कांग्रेस रेडियो के बारे में बता रहा है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है, तो अगेन दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल. फिर स्टेट ऑफ द एनुअल क्लाइमेट रिपोर्ट जो हर साल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालता है जिसने 2023 को सबसे गर्म ईयर बोला, अगेन ये टॉपिक भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. रशिया के क्रॉकस सिटी हॉल में जो अटैक हुआ ISS खोरासान की हिस्ट्री, 23 मार्च को शहीद दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाता है शहीद भगत सिंह. और हमारा कृत्रिम AI यानी इंडिया का पहला इंडिजिनस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनाउंस किया ओला ने, ये भी आप पढ़ेंगे. पाकिस्तान ने जो बासमती राइस का पायरेसी करना चालू किया है उसके ऊपर भी मुद्दा इंडिया ने रेस किया है. सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट को देख रही है, एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई है इन MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, राइट. फॉलोड बाय दिस आप देखिएगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है हाई कोर्ट ऑफ सेशन को कि आपको बेसिकली जो भी बेल कंडीशंस हैं वो जुडिशियसली लगानी चाहिए. शिवा शंकर दास एक्ट पिंटू वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट. फर्दर आप आगे बढ़िए तो T+ पेमेंट सेटलमेंट साइकिल, सुप्रीम कोर्ट की स्लैब सूट्स के ऊपर गाइडलाइन, ये टॉपिक को ध्यान से करिएगा, क्लैट में लीगल सेक्शन में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं. न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई जो हमारी ब्रुसेल्स में हुई, IEA ने कराई. काचातीवो आइलैंड का इशू एवरीबडी नोस की, तो इंपॉर्टेंट है ही. 90 ईयर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है. और हवाना सिंड्रोम हट के थोड़ा सा टॉपिक है, वो क्या है आपको पता होना चाहिए, रशिया के ऊपर ब्लेम लगा रहा है USA. फिर EVI द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्वर्सेशनल AI चैटबॉट जो कि ह्यूम ने डेवलप किया. वाईकॉम सत्याग्रह के 100 साल, US ने UNSC रेजोल्यूशन गाजा पे क्यों अलाउ कर दिया, उसके इंप्लीकेशंस क्या हैं.
चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, जैकब जुमा को बैन कर दिया गया और सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के इलेक्शंस में वापस से प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाई दिए। ये टॉपिक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्दर 163 टॉपिक्स कर चुके हैं, आखिरी के कुछ टॉपिक्स और करने हैं जिनको जल्दी जल्दी मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। मेक्सिको ने इक्वाडोर के साथ अपने रिलेशन सस्पेंड कर दिए। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जॉर्ज ग्लास नाम के व्यक्ति को मेक्सिको ने जबरदस्ती एम्बेसी में, सॉरी इक्वाडोर में, मेक्सिकन एम्बेसी में इक्वाडोर की फोर्स ने जबरदस्ती उनको पकड़ लिया। तो उसकी क्या हिस्ट्री है वो कर सकते हैं। नेटो की हिस्ट्री, अप्रैल 4 को 75 ईयर्स हुए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं तो बोलूंगा, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। 165 टॉपिक, 166 पे आ जाएं। इजराइल ने सीरिया में जो रेड कंडक्ट करी, जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी मारे गए इरानियन कुछ फोर्स के, वे टॉपिक अगेन कंटिन्यूइंग में इंपॉर्टेंट। एयर इंडिया इज प्लानिंग टू मर्ज विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड एयर एशिया ग्रुप। ये सिंगापुर एयरलाइंस 25% होल्डर है इसमें। आज़ाद हिंद फौज की हिस्ट्री को आप पढ़िएगा। और उसके बाद क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, सुरक्षा किससे रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनसे रिलेटेड सब्सिडीज प्रोवाइड करने की कोशिश है। गॉड्स पार्टिकल की हिग्स बोसॉन थियरी के जो पीटर हिग्स हैं, ही डाइड एंड लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर प्रोजेक्ट। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अराउंड अभी भी रिस्क बरकरार है, तो वो न्यूक्लियर समिट से रिलेटेड टॉपिक हो गया हमारे लिए। हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम लीग, अगेन हिस्ट्री से बहुत कुछ इस बार देखने को मिलेगा आपको। हिंदू महासभा, द स्टोरी ऑफ फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस। मंगल पांडे को याद करना 8 अप्रैल को, रिमेंबरिंग हिज वैलर। अंबेडकर जयंती और उनकी महत सत्याग्रह। और ऑपरेशन मेघदूत के 40 ईयर्स, दैट इज अप्रैल 13, 1984 को, जो हमने सियाचिन ग्लेशियर को टेक ओवर किया। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। जलियांवाला बाग की कहानी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आ चुका है हमारे में, तो इसको भी पढ़ लेंगे। इंडिया के पहले जनरल इलेक्शन की कहानी, ये तो आपको पढ़ना ही है, दिस अ वेरी वाइटल टॉपिक। इंडिया और मॉरिशस ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए ट्रीटी साइन करी। वियतनाम की एक बिजनेस वूमन है ट्रोंग माई लैंड, जिनको ऑलमोस्ट $12.5 बिलियन के लिए फांसी की सजा दे दी गई है। इतना बड़ा स्कैम किया उन्होंने वियतनाम पे, तो 3% GDP ऑफ वियतनाम के बराबर है। एन महर एंड रोजमेयर वाइडर वॉल्ट has won a case against climate change before European courts for human rights. It is also a very important topic. Great Indian Bustard judgments आप इसको रिलेट कर सकते हैं, राइट। फिर गोपित होताकुरा नाम के व्यक्ति, NS-25 मिशन ऑफ ब्लू ओरिजिन, ये फर्स्ट इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस एज अ स्पेस टूरिस्ट बन चुके हैं। दैट इज वेयर यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू दिस। एंड फिर लैंड ब्रिज थाईलैंड का ऑन द इस्मस ऑफ क्रा, अंडमान निकोबार का सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। लामा 3, इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को डील। इलेक्शंस इन नॉर्थर्न आयरलैंड और 4th ग्लोबल कोरल मास ब्लीचिंग। ये सारे ऐसे इंटरनेशनल एपिसोड्स हैं जो कि आप देखते हुए समझ सकेंगे। आगे आपको काफ़ी चीज़ें इसमें पता चलेंगी। लद्दाख की जो डिमांड है सोनम वांगचुन की, जो पश्मीना मार्च है, उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आखिरी के 13 टॉपिक्स। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली ने 2022 में बोला था कि एक लीगली बाइंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बनानी है, जो अभी तक नहीं बन पाई, तो वील रीड अबाउट दैट। सुप्रीम कोर्ट का वीवीपैट का जजमेंट। 50 ईयर्स ऑफ पोर्टुगल्स कार्नेशन रिवॉल्यूशन which is considered to be Europe's longest dictatorship was overthrown, उसकी history। and 191 autonomy with Assam, article 244 22nd constitutional amendment act का implementation। फिर फर्स्ट से लेके 18th लोकसभा स्पीकर की जो स्टोरी है वो लिस्टिंग है, पता होनी चाहिए आपको। न्यूयॉर्क का हाईएस्ट कोर्ट ने फॉर्मर हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वी विंस्टीन को 2020 के रेप कन्विक्शन से मुक्त कर दिया। मीटू मूवमेंट बड़ा फेमस है, आ चुका है, तो आ भी सकता है, इसको भी पढ़ेंगे। अप्रैल 26 is the day that is remembering the Chernobyl disaster after 38 years, Zaporizhia nuclear summit से related। May 1st International Day for Workers in the memory of Haymarket martyrs of Chicago, very important topic। Supreme Court has rejected the eggshell skull judgment, वो law of tort से related है। Sierra Madre, what that is the ship of the World War II era which is a bone of contention between China and Philippines। Fentanyl, ये ड्रग है जो चाइना में बन के अमेरिका मेक्सिको में काफ़ी बिक रही है, तो चाइना यूएसए के बीच में रिलेशंस में स्ट्रेस है इनकी वजह से। ज़ारा और H&M जैसी कंपनी को ब्लेम किया जा रहा है आज, बिकॉज ये जो कॉटन है ये यूज़ कर रहे हैं अमेजॉन फॉरेस्ट से, और डिफॉरेस्टेशन के मुद्दे से ये रिलेटेड है। हिस्ट्री ऑफ बेटर कॉटन विच वॉज क्रिएटेड इन 2019। एंड एट लास्ट कॉन्गो का एमपॉक्स क्राइसिस, जिसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। वेल, ये वो सारे फर्दर 100 टॉपिक्स हैं जो आपको डिटेल में प्रिपेयर कर लेने चाहिए फॉर क्लैट 2025। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फॉर्म आप क्लैट समाधान का फिल कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे सेशन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।